करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, हमेशा 0। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज 0. So I can ask you in the question paper like this, if the value of the first central moment is 0, 1, 2, 3, 4. ऐसा I can give you options. So you have to tick on the correct option, which is 0. First central moment is always 0. Now we are going to apply. Okay. Now M2 क्या होता है, वेरिएंस होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में ही देखा है कि we apply Shepard's correction on variance. तो हमें क्या करना होगा, इस M2 पे हम क्या करेंगे, करेक्शन अप्लाई करेंगे। सो करेक्टेड M2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेल बाय व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर करेक्टेड वेरिएंस, फॉर्मूला किसी को याद है, व्हाट वाज द शेपर्ड्स करेक्शन ऑन वेरिएंस। सो करेक्टेड M2 is nothing but your variance, and the formula was M2 minus C square upon 12. I don't know if you all can recall or not. Yes, ma'am. C square. Yes, ma'am. Corrected variance. No, corrected variance minus C square upon 12. और ये M2 भी क्या है? M2 is also formula of variance only. That is why the formula will remain same. कोई changes नहीं होगा. तो corrected M2 का formula ये हो गया. So M1 पे no changes and similarly M3 पे भी no changes. So M1 और M3 पे कोई changes मतलब कोई correction apply नहीं करेंगे, apply करेंगे सिर्फ M2 और M4 पे. So corrected M4 का formula क्या हो जाएगा? Corrected M4 is equals to M4 minus M2 upon 2 C squared plus 7 upon 240 into C raised to 4. What is this C? C क्या है? Difference between interval. Or you can say class interval size. Yes, ma'am. हाँ मैम. क्लास क्लास इंटरवल साइज यू कैन से। तो क्लास इंटरवल साइज जो ग्रुप डेटा से आपको मिल जाएगा। याद रखो ये डिस्क्रीट डेटा पे अप्लाई नहीं करते, बिकॉज डिस्क्रीट डेटा के लिए हम एक्चुअल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉब्लम किधर आता है, ग्रुप डेटा में। व्हाई प्रॉब्लम ऑकर्स इन ग्रुप डेटा, बिकॉज उधर हमें xi नहीं पता होता, तो हम xi कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ दैट क्लास इंटरवल। So we take average of class interval because of which error occurs in the answer set, and we apply the correction to get the exact answer, and we apply Shepard's correction on them. So M2 पे अप्लाई होगा और M4 पे Shepard's correction अप्लाई होंगे। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट आता है, if you want to avoid these quantities, अगर हमको ये क्वांटिटी नहीं यूज करना है, then there is one more formula for finding the moments correct value, that is known as dimensionless. What is the title? It's just moments in dimensionless form. Moments in dimensionless form. So the moments about mean, तो dimensionless form में हम moments about mean कैसे डिनोट करेंगे, देखो जरा। moments about mean is denoted by AR. So this is how we denote moments about mean in dimensionless form, which is AR, and the formula is MR upon S raised to R. What is this S stands for? S का मतलब क्या होता है? What is this? MR तो समझा कि rth moment. What is this at? What is S? Standard S deviation. Yes, standard deviation. And standard deviation is equals to which moment? Second central. Second, yes. So ये हो जाएगा MR upon square root of M2, because standard deviation क्या होता है, square root of M2 the whole raised to R. So students ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। The moments about, like आप देख सकते हैं इसमें कुछ क्वांटिटी एंड ऑल सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है। टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोमेंट्स अबाउट मीन का करेक्टेड वैल्यू विद दैट इज MR अपॉन S raised to R, and we know that S क्या होता है, it is square root of M2. So एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू आंसर। एंड ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस वी आर गोइंग टू यूज इन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। So I'll just go through all the formulae once and then we'll start with the problem. So today we saw Shepard's correction for moments. तो कौन कौन से moments पे आप correction apply करने वाले हो?
M2 and सारे M4 में मोमेंट M2 नहीं and है. M4 पे M2 is nothing but what? Variance second central Wait, moment. yes, M2 which is second central moment, it is nothing, it is equals to variance we write S square. तो S क्या हो जाएगा? It is square root of M2. What is this? S stands for standard deviation. M1 का वैल्यू क्या होता है हमेशा? फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज जीरो, देयरफॉर नो करेक्शन रिक्वायर्ड. करेक्टेड M2 इज नथिंग बट वी हैव वेरिएंस, एंड हमें पता है कि वेरिएंस का शेपर्ड करेक्शन क्वांटिटी क्या होता है? इट इज C square upon 12. तो ये क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. एंड अगेन देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड ऑन M3. करेक्टेड M4 क्या हो जाएगा? M4 माइनस M2. ये M2 वाला M2 कौन सा लोगे? करेक्टेड M2 लोगे या करेक्टेड अनकरेक्टेड M2 लोगे? अनकरेक्टेड M2 ही लोगे, करेक्टेड M2 कहीं पे भी नहीं आएगा. ओके, सो अनकरेक्टेड वैल्यू ही लोगे. देन दिस, देन हमने पढ़ा कि टू अवॉइड ऑल दीज क्वांटिटी देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट्स अबाउट मीन in dimensionless form, that is denoted by AR, and the formula is MR upon SS2R. S stands for standard deviation and standard deviation is equals to square root of M2. So ये फॉर्मूला बनेगा आपका. तो अगर मैं R का वैल्यू 2 ले लूं, अगर R का वैल्यू 2 ले लूं तो क्या हो जाता है? ये पुट R is equals to 2. C हो जाएगा A2 is nothing but what? Moments about mean, मतलब सेंट्रल मोमेंट्स ही है. तो क्या हो जाएगा इन डायमेंशनलेस फॉर्म? तो जहां जहां पे आ रहे हैं वहां पे आपको 2 पुट करना. तो ये हो जाएगा M2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M2 द होल रेज टू 2. राइट? नो, R का वैल्यू क्या लिया हमने? 2 लिया. से क्या हो जाएगा? M2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M2 स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ M2 स्क्वायर वेरी डिफिकल्ट नो किड्स. स्क्वायर रूट हट जाएगा तो M2 आएगा. हाँ, तो M2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा. तो इन डायमेंशनलेस फॉर्म मोमेंट्स अबाउट मीन द आंसर इज व्हाट? 1. अगर मैं R का वैल्यू 1 रखती तो क्या होता था आंसर? पुट R इज इक्वल्स टू 1. तो A1 क्या होता था? M1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M2 द होल रेज टू 1. बट फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? 0. तो फर्स्ट ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो A1 का वैल्यू 0 होता है और A2 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. ये सारी चीजें बस आपको बताने थे कि कैसे यूज करना है. So let us start with one question quickly and then we are done with this topic. Everything we have covered from this. But ये question लेने के बाद. So question, calculate the first 4 moments about mean. Also apply Shepard's correction wherever needed. Shepard's correction wherever needed. And calculate A3. तो तीनों क्वेश्चन मैंने क्लब कर दिया है. मोमेंट्स अबाउट मीन, शेपर्ड्स करेक्शन के, और A3 क्या होता है? मोमेंट्स अबाउट मीन इन डायमेंशनलेस फॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A3? बताओ जल्दी. देखो अभी मैंने बोला फिर भी रिपीट नहीं कर रहे हो आप लोग. A3 क्या होता है? व्हाट इज इट? A3 Moments in dimensionless moment. मोमेंट्स अबाउट मीन. ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोमेंट्स कौन से मोमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं. सो मोमेंट्स अबाउट मीन की बात कर रही हूँ. अबाउट मीन इन डायमेंशनलेस फॉर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम हमेशा अपने डेटा को एवरेज से कंपेयर करते हैं कि लाइक हमारा जो डेटा है वो एवरेज से कैसे डिफर हो रहा है, कैसे डेविएट हो रहा है. सो इसलिए मोमेंट्स अबाउट मीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मोमेंट्स अबाउट मीन इन डायमेंशनलेस फॉर्म. So here is my data, size and frequency. Zero to 4, 4 to 8, 8 to 12,
and 12 to 16. Next is 10, 12, 15, 13. 10, 12, 15, 13. Now you tell me how should I proceed with this question? कैसे solve करेंगे question को? Now soon I'm going to give you 5 questions, ठीक है? उस 5 questions के assignment होंगे जो आपको मुझे submit करना होगा, and on that basis you are going to get internal marks के, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये सब questions exams में नहीं आने वाले हैं, मैं आपका internal test ऐसे ही लेने वाली हूँ. मे बी मैं उसे क्लास में ही टेस्ट कंडक्ट करूँगा. आई विल बी गिविंग यू 5 क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करो इतना टाइम फ्रेम में और अपलोड करो. जल्दी बताओ हाउ शुड आई सॉल्व दिस. पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट्स अबाउट मीन निकालना है. कैसे निकालोगे मोमेंट्स अबाउट मीन? हेलो, कोई बताना चाहेगा कैसे निकालेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन? मैम पहले XI क्लास में लिखेंगे. नहीं, पहले बताओ क्या निकालना पड़ेगा. टेबल हम बाद में देखते हैं कि टेबल में कौन कौन सा कॉलम नीडेड है. पहले फ्लो कैसा होगा? जब माइंड में पिक्चर बननी चाहिए ना कि पहले मुझे ये कैलकुलेट करना है, फिर वो कैलकुलेट करना है. पहले मैम क्या मीन निकालेंगे. मीन निकालेंगे. ओके, ठीक है. और कुछ याद आ रहा है क्या कर रहे थे हम? जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिया था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने क्या किया था? पहले क्या निकाला था हमने? आई थिंक वी हैड कैलकुलेटेड मोमेंट्स फर्स्ट. यस मैम. कौन सा मोमेंट निकाला था वो बताओ. पहले रॉ मोमेंट निकाला था हमने, मोमेंट्स अबाउट जीरो निकाला था, फिर हमने रिलेशन यूज करके सेंट्रल मोमेंट्स निकाला था. अभी क्या पूछा है? फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन बोला है. अबाउट मीन मतलब क्या? हमें सेंट्रल मोमेंट्स निकालने के लिए बोला था. सेंट्रल मोमेंट्स निकालने के पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा किड्स? मुझे निकालना पड़ेगा मोमेंट्स फर्स्ट, एंड देन मोमेंट्स का रिलेशन यूज करके आई कैन अप्लाई इन द आई कैन कैलकुलेट सेंट्रल मोमेंट्स. तो फॉर्मूला क्या होगा? So formula is mr dash is equals to summation. Okay, since frequency is given, तो frequency दिया तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? fi into xi minus a the whole raised to r upon n. और n कैसे मिलेगा? By adding all the frequency. I don't know if you all can recollect it or not. याद आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ करना पड़ता था. चलो मैं नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बताती हूँ पहले क्या करना पड़ेगा. तो पहले आपको आर्थ मोमेंट निकालना पड़ेगा. दिस इज नोन एज आर्थ मोमेंट, ठीक है? ये mr dash है. दिस इज नॉट एट ऑल मोमेंट्स अबाउट मी. दिस इज नॉट एट ऑल मोमेंट्स अबाउट मी. सो पहले हम ये मोमेंट निकालेंगे, फिर हम रिलेशन यूज करके सेंट्रल मोमेंट्स निकालेंगे. वैसे वो भी कर सकते हैं ना, पहले मीन निकालेंगे फिर हर एक वैल्यू में से मीन सबट्रैक्ट करके. दैट इज आल्सो एन इजी टास्क, बट विल अप्रोच दिस मेथड. फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्लास में. तो अभी ना ये कैलकुलेट करेंगे. मतलब हमें m1 डैश निकालना है, m2 डैश निकालना है, m3 डैश एंड m4 डैश. ये 4 चीजें पहले निकालेंगे, एंड देन यूजिंग दोज रिलेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सेंट्रल मोमेंट्स. तो नेक्स्ट कॉलम किसका आएगा? मैम डायरेक्ट सेंट्रल क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो. उसमें मीन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो विच वन यू वांट टू कैलकुलेट? मीन निकाल के करना है? मैम दोनों से करते. तो एक काम करो, कोई एक स्टूडेंट मीन से मीन निकाल के करो, हम ये मेथड अप्रोच करते हैं फिर, ठीक है? या फिर मीन से ही करते, चलो जानने दो.
आई वाज जस्ट डूइंग सो दैट कि आपका दोनों चीजें ब्रश अप हो जाए, रॉ मोमेंट्स कैसे निकालते हैं वो भी, और फिर मीन का भी थिंग्स। ठीक है, चलो यही करेंगे। Where is my red pen? Yes. Now क्लास मार्क का कॉलम आएगा, फिर क्लास मार्क के बाद कौन सा कॉलम आएगा? क्लास मार्क एक्सआई तो निकल जाएगा, फिर हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में क्या चाहिए? एक्सआई माइनस ए चाहिए। यस मैम। तो नेक्स्ट कॉलम आएगा एक्सआई माइनस ए का। नेक्स्ट कॉलम किसका आएगा? आई थिंक एफ आई इंटू एक्स, into fi. एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। बच्चा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले के हिसाब से टेबल बनाओ। देन आएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए द होल स्क्वायर। Then fi into xi minus a the whole cube, and lastly fi into xi minus a the whole raised to 4. Now complete this table. क्लास मार्क का कॉलम बताओ। ओके, फ्रीक्वेंसी का कॉलम डू आई नीड टू ऐड? यस, देन ओनली आई विल गेट द वैल्यू फॉर n। तो फ्रीक्वेंसी ऐड करो, बताओ कितना आता है? कैलकुलेटर हाथ में है ना, जब सारी वैल्यूज को 50 ऐड आता है करना है, मैम। बताओ। 50। ओके। नेक्स्ट क्लास मार्क बताओ। 2 2 6 10 14। यस, ये कॉलम को ऐड करने की जरूरत है क्या? डू आई नीड टू ऐड दिस कॉलम? नहीं मैम। क्लास मार्क का नो कॉलम तो जरूरत नहीं है। नाउ एक्स आई माइनस ए, अभी ए क्या लोगे? आर वी गिवन इन द क्वेश्चन कि ए ये लेना है? हम 15 लेंगे क्या मैम? 15 क्यों बच्चा? हाईएस्ट वही है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। डू वी टेक फ्रीक्वेंसी एज ए और डू वी टेक दैट करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क? That corresponding class mark. ओके, तो ए इज नथिंग बट व्हाट इज ए? ए स्टैंड्स फॉर, ए इज द क्लास मार्क। ए इज इक्वल टू क्लास मार्क, ये इतना याद रखो। तो फ्रीक्वेंसी पे जाने का ही नहीं, क्लास मार्क में लेगा। अभी क्लास मार्क कितने सारे? 4 क्लास मार्क है। अब 4 क्लास मार्क में से मैं कौन सा वैल्यू ए को एज ए ले सकती हूँ? हाईएस्ट कौन सा वाला। क्लास? विच हाईएस्ट वाला, विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों कितनी बार भी मैं बता दूं, आप लोग मुझे फ्रीक्वेंसी ही बोलोगे कि ए होगा। वो फ्रीक्वेंसी होता है, ए इज दैट क्लास मार्क विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा? 15। उसके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क क्या है? 10। तो ये हो 10। जाएगा हमारा ए। सो हम क्या करेंगे? हर एक वैल्यू में से क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले? 10 सब्ट्रैक्ट करने वाले। चलो बताओ अभी एंट्रीज। एक्स आई माइनस ए का एंट्री होता है। एक्स आई माइनस ए एक्स आई ये रहा, एक्स आई का कॉलम, उसमें के हर एक वैल्यू में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ए। ए। ए तो सब्ट्रैक्ट करो, ए का वैल्यू 10 है, हर एक वैल्यू में से आपको 10 सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट इज डिफिकल्टी इन दिस?
मैम -8 -404. हाँ तो -8 -8 then -4. -4 then 0 then 4. 04. क्या ये कॉलम ऐड करने की जरूरत है? No. Yes, ma'am. हाँ किधर जरूरत है? हमें fi इंटू xi माइनस ए को ऐड करने की जरूरत है, ना कि xi माइनस ए को अकेला। तो हमें नेक्स्ट कॉलम करके अभी जितने भी आगे के कॉलम है सारे कॉलम्स को हम ऐड करेंगे। चलो fi इंटू xi माइनस ए करो ना। अभी कौन सा कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे हम? -80, मैम. Frequency और xi -80. एक सेकेंड थोड़ी सी ये पेन ना, व्हाट इज हैपनिंग विद दिस, एवरीथिंग इज गेटिंग सिलेक्टेड। So I need to add this. No, I need to multiply this and this column. चलो शुरू हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर कितना आएगा। 10 इंटू -80 आएगा पहले. -80 नेक्स्ट -48. 0. नेक्स्ट 52. अभी ये कॉलम को ऐड करो बिकॉज fi इंटू xi माइनस ए चाहिए। ऐड करो, 73 आता है। कितना आता है? -73 तो रॉन्ग है। -76 मैम। -76. -76 दैट्स राइट। सो m1 डैश क्या हो जाता है? m1 डैश का फॉर्मूला होता है समेशन fi इंटू xi माइनस ए अपॉन n। तो न्यूमरेटर कितना मिला हमें? -76 अपॉन n कितना मिला हमें? 50। तो -76 अपॉन 50 कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर हाथ में और 2 डिजिट टाइप करने को इतना टाइम लगता है? क्या क्या माइनस -1.5. दैट्स राइट। ना अभी नेक्स्ट कॉलम ऐड करो सो दैट हम m2 डैश कैलकुलेट कर सके। चलो बताओ। fi इंटू xi माइनस ए द होल स्क्वायर। तो जो ग्रीन कलर्ड है, ग्रीन हाईलाइटेड कॉलम्स है, उनको ही आपको क्या करना है? स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है। हम 640 है. 640 पहला वाला करेक्ट है। फिर 192. दैट्स राइट। फिर 0. नेक्स्ट 208. अभी ऐड करो सारी एंट्रीज को। 1040. वेरी गुड, अभी तो बहुत फास्ट हो गए तुम लोग। अभी m2 डैश निकाल लेते हैं। फिर m2 डैश क्या हो जाएगा? समेशन fi इंटू xi माइनस ए द होल स्क्वायर अपॉन n। ये मिला हमें 1040 अपॉन 50। 1040 अपॉन 50 कितना होता है? 20.8 ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अभी निकालो fi इंटू xi क्यूब का कॉलम। मैम -5120. -5120 के एक मिनट राइट। -5120 नेक्स्ट -768. -768 नेक्स्ट 0. नेक्स्ट 832. नेक्स्ट ओके, टोटल कितना हो जाएगा ये? -5056. 5056 वेरी गुड। अभी फिर m3 डैश भी निकाल ही लेते हैं। सो m3 डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज समेशन fi इंटू xi माइनस ए द होल क्यूब अपॉन n। सो -5056 अपॉन 50 कितना होता है ये?
minus 101.12. दैट्स राइट, -101.12। अभी लास्ट कॉलम भी कर लो फटाफट। मैम 40960. एक सेकंड, 40960। ओके, नेक्स्ट। 3072. 3072. नेक्स्ट। थोड़ा डिफिकल्ट है, कैलकुलेट करने दो. 0. क्या अच्छा, दैट वाज सरकाज़म। नेक्स्ट। 3328. 3328. एंड ऐड करने पे कितना आता है? 47360. 47360। राइट। तो m4 डैश कितना मिलता है हमें? 47360 अपॉन n कितना होता है? 50। तो ये करने पे कितना आएगा? 947.2. 47. 947.2। 947. राइट। सो ये हो गया हमारा m1 डैश m2 डैश m3। बट हमें तो अब मोमेंट्स अबाउट मीन पूछा है, तो वो कैसे निकालेंगे? यूजिंग रिलेशन। तो सेंट्रल मोमेंट्स का मतलब क्या होता है? मोमेंट्स अबाउट मीन। सो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट तो हमेशा 0 होता है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज m2 डैश माइनस m1 डैश का स्क्वायर। याद आ रहा है क्या रिलेशन? हाँ मैम. हाँ, सो अभी m2 डैश है ही आपके पास और m1 डैश भी है। सो m2 डैश कितना है हमारे पास? 20.8 माइनस m1 डैश कितना है हमारे पास? -1.52 द होल स्क्वायर। अभी कैलकुलेटर में एज इट इज टाइप करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर। $22.32. 22.32। दैट्स रॉन्ग। वही है भाई, वो रॉन्ग अरे रहा हूँ. भाई, रॉन्ग है। स्क्वायर लेना. 18.5 है मैम. यस, 18.5 इज करेक्ट। फिर ये m3 और m4 निकालो। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है? मैं लिख के ले रही हूँ, बट यू ऑल शुड रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। सारे वैल्यूज आपके सामने, यू जस्ट हैव टू पुट इट इन दिस इक्वेशन एंड गेट द आंसर।
minus 13.27. Minus 30.27. That's wrong. 13. Minus 13 point. Yeah, that's right. Minus 13.27. राउंड ऑफ किया तो -13.3. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट वन M4. I need to show you all values also. M4 निकालो जल्दी. Why only Sumit is calculating? Other kids calculate करो फटाफट. फटाफट फटाफट बताओ आंसर कितना आ रही है. And I've started uploading this lecture links on YouTube. You all can start referring. मतलब एक ही डाला अभी. One by one I'll start putting. M4, anybody? What is the value of M4? Hello, M4, anybody? Ma'am, wait, ma'am. Okay. Ma'am, 604.75. That's right, 604.75. ये हो गया हमारे फर्स्ट 4 moments about me. और यही पूछा था क्वेश्चन में, तो we calculated. Now हमें corrected M2 और corrected M because हमें पता कि also apply correction wherever needed. तो correction किस पे needed है? M2 and M4 पे. And I have written the formula also. C का वैल्यू क्या है इधर क्वेश्चन में? C का वैल्यू क्या है इधर? Look at this in class interval and tell me कि C क्या हो रहा है? 4. C is 4, right? So put the value of C over here. So M2 कितना मिला हमें? M2 I got it as 18.5. उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? C कितना हमारा? 4 square upon 12. Calculate and tell me. 4 square होता है 16. 18.5 minus 16 upon 12. 17.17. 17.17. 17.17. Other kids cross verify whether it is right or not. I'm not saying it. This is correct one. Other kids, are you all also getting the same? Yes, ma'am. ओके ठीक है. तो M4 निकालो अभी. याद रखो कहीं पे भी करेक्टेड M2 नहीं डालना है, अनकरेक्टेड वैल्यू ही डालनी है. तो M4 कितना मिला हमें? 604.75 माइनस M2 कितना है हमारे पास? 18.5 अपॉन 2 इंटू C स्क्वायर. C हमारा 4 स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 240 इंटू C. C is 4:4. I have substituted all the values. You just have to put it in the calculator and get the answer.
मिला किसी को करेक्टेड M4? Corrected M4 anybody? Okay, someone has given answer in the chat box. 464.25. Okay, 464.2425. Okay, yes, getting 2-1. Okay. तो ये हो गया, ठीक है. डेसिमल 1 तक चाहिए, 2 तक चाहिए रहता मैक्सिमम. करेक्टेड M2 एंड करेक्टेड M4 वी गॉट. नाउ करेक्टेड, अभी एक लास्ट क्वेश्चन था, कैलकुलेट M3. सो M3 आपको A3 निकालना पड़ेगा. A3 मतलब क्या? डायमेंशनलेस मोमेंट्स अबाउट मीन. द फॉर्मूला इज M3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M2 द होल रेज़ टू 3. M3 का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 13.3. सो दैट आई रोट ओवर हियर. एंड M2 का वैल्यू. अभी आपको ये सॉल्व करना, बताओ आंसर कितना आ रहा है. मैम आपने क्या बोला? M3 कैलकुलेट करना है? A3 A3 ओके. A3 कैलकुलेट करना है ना. देखो इधर क्वेश्चन में था ना, कैलकुलेट A3 मोमेंट्स अबाउट मीन इन डायमेंशनलेस मोमेंट. सो A3 का फॉर्मूला क्या होगा? M3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M2 द होल रेज़ टू 3. और ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. M3 हमने निकाला, कितना मिला है? -13.3. So that I substituted over here. ओके मैम, समझे. तो जस्ट सॉल्व करो, कैलकुलेटर में पुट करो वैल्यूज एंड गेट द आंसर. -13.3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 18.5 द होल क्यूब है. याद रखो, स्क्वायर रूट ऑफ 18.5 पहले निकालना है. ओके, किसी को आंसर है -0.1671. वही आ रहा है. -0.1671. यही आ रहा है क्या आंसर? यस मैम. ओके, फिर तो ये फाइनल आंसर है. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू.